Hello, dear kids. Today we are going to read chapter 7, The Red Raincoat. Do you know what is a raincoat? A raincoat is a waterproof overcoat, means long coat that you wear on a rainy day to protect yourself from rain. And it is written by Kiran Kasturia. Now, warm up portion. We wear different kinds of clothes in different kinds of weather. Now, what is weather? First of all, you should know that. Weather, it's a sunny day, hot day, snowy day, or a cold day. Okay, rainy day. So, they are saying we wear clothes according to the weather. हम जो भी clothes पहनते हैं according to the weather पहनते हैं ना. Like summers में we wear cotton clothes. In winters we wear woolen clothes. And on rainy days we wear raincoat, gum boots. Okay. Next, write the write the correct words from the box under the pictures. Now you have three pictures and these are the three hints. You have to write correct word under each picture. The first picture. In this picture, you can see it is a hot day. Okay. आप उनके clothes देखकर भी पहचान सकते हो सबसे पहले. So it is a hot day. So write hot. And in the next picture, you can see this child is wearing a raincoat and it's raining also. So it is a rainy day. है ना? And in the last picture, you can see snow and this boy is wearing woolen clothes. So it is a cold day. Okay. So the first word was cold, rainy, hot. We have written the words according to the pictures. Now let's read the chapter. On Sunday, Manu's parents got him a red raincoat. It was a Sunday and Manu's parents gave him a red raincoat. You can see in this picture Manu is wearing a red raincoat. It is given to him by his parents. Ma, may I wear it now? Asked Manu. Now Manu is asking her mother, Ma, may I wear it now? Wear means पहनना. To put on something like shoes, clothes. जब भी आप पहनते हो इंग्लिश में उसके लिए words use होते हैं wear or put on. Okay. Now he is asking for permission. No, my dear. The rains are near, but just now the sky is clear, said Ma. Now see, no, my dear. No, my dear Manu. The rains are near. रेन्स आने वाली हैं बट जस्ट नाउ अभी द स्काई इज क्लियर मीन स्काई जो है बिल्कुल क्लियर है देयर आर नो क्लाउड्स दिस वाज द रिप्लाई गिवन बाय माँ मंडे वाज स्टिल ब्राइट एंड सनी नाउ इट्स मंडे एंड इट वाज ऑल्सो ब्राइट एंड सनी डे ठीक है सो रेन आने के कोई चांसेस ही नहीं हैं Now we will move to the next page. You can see it is a bright day, sunny day. And this is the picture of a raincoat. है ना? Again, picture of a raincoat. You can see the raincoat. It's a sunny day. Now, next page, page number 79. Will it rain today, Ma? Now see, Manu is very excited to wear his raincoat. He is again asking Ma, will it rain today? क्या आज रेन होगी? Asked Manu. No Manu, not today. नहीं Manu, not today. आज भी रेन नहीं होगी. If you wear your raincoat, you will look quite funny, said Ma. Now Ma replied, if you wear your raincoat today, अगर तुम आज अपना raincoat पहनोगे ना, so you will look funny. बिल्कुल ठीक कह रही है ना मम्मा अगर आप रेनकोट पहन रहे हो एक सनी डे पर तो सब आपके ऊपर हंसेंगे ही ना बिकॉज वो रेनी डे पर पहनना चाहिए ऑन ट्यूसडे द स्काई वॉज ब्लू अगेन ट्यूसडे वॉज अ क्लियर डे
है ना. It was the sky is blue. Just wait, I will show you the picture. You can see the sky is blue just like that. अब इसको देखकर आपको अगर ऐसा होगा वेदर तो आपको लगेगा कि रेन होगी. नहीं, that's why माँ ने यही कहा है. It's a sunny day again. The sky is blue. Yes, next line. माँ when can I wear my raincoat? Asked Manu. अब मनु फिर से पूछ रहा है, थोड़ा सैड भी है ना. ऐसे माँ when can I wear it then? फिर मैं इसे कब पहनूंगा? Not today, dear. There is just one white cloud in the sky, said Ma. Next day, again, there is only one cloud. You can see like this. अभी पूरा स्काई ब्लू दिख रहा है और बस वहां पर एक वाइट क्लाउड है ऐसे. तो अब इतना सा क्लाउड तो रेन नहीं लाएगा, है ना. दैट्स वाई माँ रिप्लाइड दैट. वेडनेसडे वॉज हॉट. अगेन वेडनेसडे वॉज हॉट. उस दिन भी बहुत हॉट है डे. माँ वाई डजंट इट रेन? आस्क्ड मनु. माँ रेन क्यों नहीं होती है? सन आई थिंक इट विल रेन सून. अब माँ बता रही हैं, बेटा आई थिंक जल्दी ही रेन हो जाएगी. मे बी इवन बिफोर द नून. मे बी नून से पहले. नून मीन्स मिड डे, दोपहर, जब आपका लंच टाइम होता है, दैट इज नून, है ना. अब माँ को ऐसा लग रहा है मे बी नून टाइम से पहले ही रेन हो जाए, सेड माँ. ऑन थर्सडे मनु वेंट फॉर अ पिकनिक. अब देखिए थर्सडे है, ठीक है ना. संडे से शुरू हुआ है ना हमारा चैप्टर. अब थर्सडे पर आ गए हैं हम और थर्सडे को मनु पिकनिक पर गया है. एंड माँ व्हाट इफ इट रेन्स? माँ अगर रेन हो गई तो मैं क्या करूँगा? अब देखो एक्साइटेड है वो अपने रेन कोट के लिए, इसलिए वो पूछ रहा है शैल आई टेक माई रेन कोट विद मी? क्या मैं अपना रेन कोट अपने साथ ले जाऊं? आस्क्ड मनु. नो माई डियर इट विल नॉट रेन टुडे. अब मम्मा कह रही हैं बेटा इट विल नॉट रेन टुडे. आज भी रेन नहीं होगी. अब माँ रीजन भी दे रही हैं, देखो हर बार अपनी बात के लिए. क्या रीजन दिया है मम्मा ने? द लिटिल वाइट क्लाउड्स आर टू हाई अप इन द स्काई, सेड माँ. अब मम्मा कह रही हैं लिटिल वाइट क्लाउड्स मीन्स जो थोड़े से क्लाउड्स हैं ना स्काई में, अभी भी वो बहुत ऊंचे हैं. देखो आपको मैं इसके लिए भी पिक्चर दिखाती हूँ. हाई क्लाउड्स. दिस इज द सीन ऑफ अ पिकनिक. मनु पिकनिक पे गया है ना, जा रहे हैं ना. दिस इज द सीन ऑफ अ पिकनिक. यस. आप देखो ये वेरी हाई क्लाउड्स, दीज आर वेरी हाई क्लाउड्स. तो ऐसे क्लाउड्स भी रेन नहीं लाएंगे जब तक वो आसमान में बहुत दूर हैं, थोड़े हैं. दे कांट ब्रिंग रेन. ओके, let's move to the chapter. Yes, Friday was cloudy. Now you can see Friday was mass. Just wait. Yes, Friday was cloudy. Okay, अब फ्राइडे को क्या है? क्लाउडी डे है, जिस दिन बादल होते हैं, सन भी उनके पीछे छिप जाता है. तो फ्राइडे वॉज क्लाउडी. माँ विल इट रेन टुडे? आस्क्ड मनु. एक्साइटेडली वो पूछ रहा है दैट माँ विल इट रेन टुडे? क्या आज रेन हो जाएगी? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज और देखते हैं रेन होती है कि नहीं. ये सब पिक्चर्स आपने देखी हैं, पिकनिक, हाई क्लाउड्स. नाउ पेज नंबर 80. यस. इट मे रेन, इट मे माई डियर. अब मम्मा क्या कह रही हैं? इट मे माई डियर. यस, हो भी सकती है, हो सकती है बारिश. देर आर सम डार्क क्लाउड्स लो इन द स्काई. डार्क क्लाउड्स मीन्स काले बादल, है ना. डार्क क्लाउड्स हैं. और साथ ही क्या बताया मम्मा ने? लो इन द स्काई, काफी नीचे हैं वो, पहले की तरह हाई अप इन द स्काई थे ना, वैसे नहीं है. आई विल शो यू द पिक्चर फॉर दिस ऑल्सो. ये देखिए अभी आपको लग रहा है ना कितने अर्थ के क्लोज दिख रहे हैं. वो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है. जो बहुत ऊंचे क्लाउड्स हैं वो रेन लाने नहीं लेकर आएंगे, नहीं लाएंगे ना.
ये देखो कितनी नीचे हैं अभी क्लाउड्स। तो ऐसा जब देखा मदर ने, उन्होंने रिप्लाई किया, यस इट मे रेन टुडे। सैटरडे, नाउ वो फ्राइडे की बात हो रही थी, नाउ वी आर ऑन सैटरडे। सैटरडे बिगेन विद अ बैंग। व्हाट इज बैंग? बैंग मीन्स द साउंड ऑफ बूम। ये लिखा भी है ब्लूम ऐसे करके। वो कौन सा साउंड होता है? जब आसमान में बिल्कुल डार्क क्लाउड्स होते हैं और लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, तभी वहां पे आवाज आती है ना, बहुत जोर से। आप डर भी जाते होंगे, है ना? दैट इज द साउंड ऑफ अ बैंग। अब जैसे ही मनु की नींद भी खुल जाती है उससे, अब देखो मनु क्या कह रहा है। माँ, इज दैट थंडर आई हेयर? माँ, इज दैट थंडर आई हेयर? थंडर क्या होता है? अ हाई साउंड इन द स्काई आफ्टर लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है आसमान में और उसके बाद तेज आवाज आती है, दैट इज थंडर। विल इट रेन सोन? आस्क्ड मनु। क्या जल्दी ही रेन आ जाएगी मॉम? एंड देन एट लास्ट इट स्टार्टेड रेनिंग। और तभी बारिश शुरू हो गई। मनु का जो वेट था वो खत्म हुआ, इंतजार खत्म हुआ। ओ इट्स रेनिंग सैंग मनु रनिंग आउट। और मनु सिंगिंग करता हुआ बाहर भाग जाता है। इट्स रेनिंग। बट Manu, but Manu called Ma, running after him. You forgot your raincoat. अब माँ उसके पीछे पीछे आ रही हैं। मनु, you forgot your raincoat. अब देखिए इतना एक्साइटेड है रेनकोट पहनने के लिए, रेन के लिए इतने दिन से वेट कर रहा है, और जब रेन आई तब उसे याद भी नहीं रहा कि मुझे रेनकोट भी पहनना है, और एकदम से सिंगिंग करते हुए बाहर की तरफ भाग गया, है ना? ऐसे ही होते हैं ना बच्चे। चलिए ठीक है, नाउ यू रीड द चैप्टर once again. Thank you so much.